عمران خان کا جو ایک ویژن تھا جس میں کہ ان کا یہ ماننا تھا اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں الیکشنز ہمیشہ متنازع رہے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک ہارنے والا ہار نہیں مانتا اور جیتنے والی کی جیت کو مشکوک کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ایوان ہے جس میں کہ اس پروسیس کے تھرو، الیکشنز کے پروسیس کے تھرو لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے اس انتخابات کو کل بھی جو یہ پچھلے ہفتے بھی جو سیالکوٹ میں انتخاب ہوا ہے اس کو بھی مشکوک بنا دیا گیا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا وقت آ گیا ہے، ساری دنیا ٹیکنالوجی پہ ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں 184 ملین لوگ ہیں جو کہ فون کا استعمال کرتے ہیں، 120 ملین ووٹر ہیں رجسٹرڈ ووٹر، تو ان کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا ان کے لیے نئی بات نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو اپروو کرے گا، کسی بھی مشین کو اپروو کرے گا کہ تھرو الیکٹرانک ووٹنگ انتخابات کو جلد، شفاف اور قابل اعتماد نتائج اور فوراً، کیونکہ جو ریگنگ ہوتی ہے وہ پولنگ کے دوران اور پولنگ کے بعد ہوتی ہے، ان سارے مسئلوں کا حل جو ہے تو یہ مشین ہے۔ اس کا باہر کی انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی وائی فائی نہیں ہے، کوئی بلوٹوتھ نہیں ہے، کوئی آپریٹو سسٹم نہیں ہے کہ نہ اس کو ہیک کیا جا سکتا ہے نہ اس میں کوئی بگز ڈالی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب اپنے ہمارے جو ممبران ہیں اسمبلی کے جو کہ ووٹوں کے ذریعے الیکٹ ہو کر یہاں پہ پہنچے ہیں، تو ہم ان کو یہ مشین دکھائیں کہ وہ آ کے اپنی تسلی کریں اور ساتھ ہی ساتھ میں اس سے وہ کریں، اس سے استفادہ حاصل کریں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا جی، ہمارے ویلکم دا اسپیکر آف دا اسمبلی، باقی جتنی بھی پارلیمانی پارٹیاں ہیں ان کی جو بھی تمام پارٹیوں کی نمائندگی یہاں پہ ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ ان کے سامنے یہ پروسیس شروع کیا جائے اور یہ 1 بجے تک ہوگی، کوئی بھی آ کے اس کو ٹیسٹ کر سکتا ہے۔ شکریہ۔ اسپیکر صاحب سے بسم اللہ کرائیں۔ کدھر گیا میں؟ ہیلو، ڈونٹ سلیپ۔ یہ پریزائڈنگ آفیسر تھے جنہوں نے یہ اسٹارٹ کیا۔ یہ آپ کا ووٹ ہے جو آپ نے یہی تھا نا جو آپ نے یہ آپ نے تسلی کر لی ہے، یہ تسلی کر لی، اور اب اس کو فولڈ کر کے آپ مارک کیسے کریں گے؟ مارک ہو گیا نا؟ صاحب اب آپ آئیں سے سینئر آپ پریس کریں۔ اس کو ایک دفعہ پھر کریں۔ کیا چیز اگر اس کو دوبارہ سے دبائیں گے اسپیکر صاحب تو پھر ووٹ ہوئے گا یا نہیں؟ ایک ووٹ ہے، یہ دوسرے دبا رہے ہیں دوسرا ادھر سے آنے والا ہے۔ جیسے اس سے وہی بندہ ہے تو ابھی جیسے دبایا نا یہ ہے اس کے پاس وہ تو اس نے نہیں ہو گیا یہ تو ڈال دیا ابھی ریزلٹ جائے گی اس کے بعد اچھا ڈبل آپ دبائے نا کاؤنٹ کر کے اچھا جی، اس میں ایک بات انہوں نے ابھی چونکہ ذکر کیا کہ ایک ووٹر جو ہے تو 2 ووٹ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ اس میں ایک ٹائم لیگ ہے۔ جب ایک ووٹ ڈل جائے گا اس کے اندر اس کے دوران میں 1 منٹ کا وقفہ ہوگا، کہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پریس کرتے ہیں اور جو ابھی تیسرا ووٹر آئے وہ کرے، کوشش کرے ایک بار دفعہ دبا کے اس کے بعد فوراً چترالی صاحب ووٹ ڈال سکتا ہوں تو ٹھیک ہے، ابھی یہ تو پریزائڈنگ افسر کے پاس ہوگا نا۔
ये तो प्रेसिडेंट अफसर के पास है। जब तक यहाँ से नहीं होगा, ये तो सर 1 मिनट के वक्फे से तो नहीं कर रहा ये वो चतराली साहब ने दोबारा प्रेस किया दोबारा ये प्रेसिडेंट अफसर के पास होगा, इन्होंने वो बटन दबा दिया। आप जरा एक्सप्लेन करें, आप थोड़ा जोर से बोले। आप एक्सप्लेन करें, इनको एक्सप्लेन करना। ये मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होगा, मीडिया की तरफ ये सारी इसका कंट्रोल प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होगा और उस टाइम निगरानी करने के लिए पोलिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं हर पार्टी के, जो जिनका काम सिर्फ ये होता है कि वो शफाफ तरीके से काम चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी को दोबारा वोट इनेबल करने के लिए तो वहाँ पे जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो इस चीज़ को ऑटोमेटिकली नहीं मॉनिटर। हाँ, तो बहरहाल मेरे ख्याल में तमाम पार्लिमानी पार्टीज को देखना चाहिए। अगर उनको कोई कंसर्न है तो वो कंसर्न एड्रेस भी हो सकते हैं। इसको सिर्फ ये नहीं है कि इसको अना का मसला बनाया जाए, मसला सिर्फ ये है कि कैसे इलेक्शन को फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। इसके लिए मैं तमाम पार्टीज लीडरशिप को और ख़ासकर पार्लिमानी पार्टीज को और तमाम एमएलएज को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आए वो यहाँ एग्जामिन भी करें, एक्सपीरियंस भी करें और देखें अगर उसको कोई खामी नज़र आती है तो उस पर बात करें। मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि अगर उसकी कोई कंसर्न है उस कंसर्न को एड्रेस करे। और अभी चूँकि दुनिया एक टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो रही है तो ज़रूरी है कि हम भी टेक्नोलॉजी की तरफ जो है ना आगे मूव करें। स्पीकर साहब, इसमें एक खास बात, अगर आप इस सिस्टम को इलेक्शन कमीशन के हवाले करें और इलेक्शन कमीशन वाले तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमा सरबराहां उनको बुला लें इसी तरह और उनको अपने सब करें जी, उसको अपने एतमाद में ले लें, मेरे ख्याल में इसमें कोई राय नहीं है। ये बहुत अच्छा सिस्टम आ गया और है। इस तरह देखें, आप अगर कानून साजी इस तरह करेंगे जिस तरह आपने किए हैं, ये मुतनाज़ुम फी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, तरसों भी होगा। मेरे बात नोट करें, अगर आप इसको गैर मुतनाज़ुम फी बनाना चाहते हैं अगले इलेक्शन को 2023 को या बिहार को जो भी है, तो उसमें यह है कि आप इलेक्शन कमीशन के हवाले इसके काम को कर दें और तमाम पार्टीज के लीडरान को, सदूर को बुलाने के बाद एक कंसेंसस पैदा करें और उसके बाद अगर आ जाएं बिल्कुल नहीं, मैं यही कहूँगा जी, एक सेकेंड, कि जहाँ तक ये इस मशीन का ताल्लुक है, ये हमारी ये जो बैलेट पेपर होगी वो किसके हाथ में होगी? जो वोट डालने वाला होगा उसके हाथ में। इसमें कौन डालेगा? इसमें तो ये तो रोल है ना, रोल ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। ये सारी कार्रवाई कमीशन करेगा, कमीशन डालेगा, गिनती होगी, इसमें डालेंगे, ये जाएगा आरओ के पास। नो, पहले इधर गिनती होगी, इधर गिनती होगी अगली जिस तरह आम इलेक्शंस में होती है। इधर अगर इस मशीन में 100 वोट नजर आ रहे हैं जो कि पूरा एक प्रोसेस है, इधर भी 100 वोट होने चाहिए। तो मतलब है कि पैरेलली एक तो ये है कि जो वोटर जो वोट डाल रहा है उसको ये पता है कि जिधर मैंने जिस इंतखाबी निशान या नाम पे मैंने प्रेस किया है उसी के नाम का वोट निकला है। वो अपनी तसल्ली करेगा, उसको फोल्ड करके इसमें डाल देगा। एक रिकॉर्ड मशीन में जिस तरह कैलकुलेटर का होता है उसमें आएगा, दूसरा जो है तो पर्चियाँ जो है वो उतनी ही नजर आएंगी, जो नतीजा ये निकालेगा वो उधर अमली तौर पर होगा। अभी आप रिस्पॉन्ड करें। मैं सर अर्ज करूँ सर, एक सेकंड। ये बड़ी इजी बात है जी, जो पुराना मैनुअल सिस्टम है वहाँ हमें प्रिजाइडिंग बैलेट पेपर देता है, बैलेट पेपर लेके उसमें काफ़ी टाइम लगता है। वो आपका CNI से ही लिखता है, आपका ये लगता है, थंब लगाता है, पूरा प्रोसेस होता है 3 से 4 मिनट का। वो आप लेके जाते हैं, साइड पे आपका बैलेट बॉक्स होता है, तो जाके वो मोहर लगा के आप आपके डालती हैं। उसमें 100 किस्म की एप्लीकेशन थी। ये प्रोसेस इस लिहाज से ईजी कर दिया गया है जी। इसमें 2 सिस्टम है। एक सिस्टम जो है आपके पास बैलेट पेपर वाला होगा और मैं जिसे मैनुअल की पुराना आ रहा है। दूसरा आपका कंप्यूटराइज्ड होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा जी, कि वो कोई भी, जैसे मैं सपोज करता हूँ कि मैं यहाँ आता हूँ जी, मैं बैलेट पेपर डालता हूँ, मैंने बैलेट को टच किया, बैलेट ने टच हुआ, वहाँ से मेरी पर्ची निकली, मैंने वहाँ को प्रेस किया। एक तो मेरा जो मैं प्रेस कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉनिकली मेरा वोट दर्ज हो गया जी, जैसे आपका कंप्यूटर में पूरा सिस्टम रिकॉर्ड आता है। वो मैंने पर्ची ली, उसको मैंने फोल्ड करके मैंने देख भी लिया कि मैंने जहाँ अपनी ये मोहर लगाई है, स्टैंप लगाया वो मेरी है, उसको फोल्ड करके मैं बैलेट पे डाल दूंगा। आपके पास 2 सिस्टम आ गए, एक आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली आ गया, दूसरा आपके पास वो आ गया। पूरा कंफ्यूजन
पूरा जो है हर लिहाज से खत्म हो गया, क्योंकि हम पुराने इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं भाई जान। हमने इलेक्शन पिटीशन भी की हुई थी, 13 के इलेक्शन में मेरे साथ धांधली की गई थी, 15,000 मेरे वोट रिजेक्ट किए गए थे, मुझे हराया गया था। इसमें सिफर वोट रिजेक्ट, इसमें सिफर वोट रिजेक्ट नहीं होगा। स्पीकर साहब एक सवाल है आपसे, चूंकि ये सारा एक अच्छा अमल है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनिया में भी हो रहा है, यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये इनिशिएटिव हुकूमत की जानब से लिया जा रहा है, तो इस पर शायद बहुत सारे लोग जो हैं उनके रिजर्वेशन सिर्फ इस बुनियाद पर हैं कि ये हुकूमत कर रही है। अगर वो जो अभी तजवीज़ भी आई है कि अगर आप और इलेक्शन कमीशन यानी कि पार्लियामेंट, स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन ये ड्यूटी ले ले और इस पे आप कंसेंसस डेवलप करें, तो मेरा ख्याल है ये कुछ सहल नहीं होगा आपके लिए कि जो रिजर्वेशन है अपोजिशन जमातों की वो भी दूर हो जाए। मेरे ख्याल में स्पीकर साहब इस पर बेहतर बात कर सकते हैं। मेरी एडवाइस ये होगी कि इलेक्शन कमीशन को भी अनबोर्ड किया जाए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ताकि सबको ये इत्मीनान हो कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए एक अच्छा टूल है। हमने सबने सपोर्ट करना है टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी को किसी की तरह मैं समझता हूँ कि तमाम पार्लिमानी पार्टीज इसको दे के एग्जामिन करें और अगर उनकी कोई कंसर्न है वो हुकूमत से टेकअप करें। मैं इसका जवाब मैं जो बता दें कि दुनिया भर में जब भी आईटी का इस तरह इस्तेमाल होता है तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दावत दी जाती है कि आए हमारे सिस्टम को तोड़े या उसके खिलाफ पकड़े। क्या आप लोगों ने ऐसी कोई एक्सरसाइज की है? बात यह है कि ये जो जिस तरह अभी स्पीकर या यहाँ पे सवाल भी हुआ, देखिए इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। कौन सी मशीन इस्तेमाल होगी, इस्तेमाल कानून के मुताबिक जो कि लॉ होगा उसके मुताबिक वो ये फैसला करेंगे कि टेक्नोलॉजी को उन्होंने चांस देना है। वही इसकी ओनरशिप, वही इसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। हमने ये सिर्फ बताना था कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 90 दिन के अंदर एक मशीन तैयार करके दी है, जो कि बुनियादी तौर पे हमने एक सलूशन दिया है। जो हमारी मिनिस्ट्री का काम था हमने वो किया है। अब ये फैसला सियासी तौर पे होना है पार्लियामेंट में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसका फैसला करना है। जहाँ तक कि इस मशीन का ताल्लुक है, हमने ये चैलेंज किया है कि आप इस पर साइबर अटैक कर लें, इस पर बेस्ट से बेस्ट बुला लें, आप इसको टेस्ट करें कि इसमें आया कोई चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है। हम पूरी तरह से ये इस बात में इत्मीनान है हमें कि इसको न तो कोई ब्रेक कर सकता है, ना इसमें कोई इसको वो कर सकता है, हैक कर सकता है, ना इसमें कोई बग डाली जा सकती है, ना इस पर साइबर अटैक हो सकता है, क्योंकि इसका ये स्टैंड अलोन है। स्टैंड अलोन का मतलब है कि इसका बैरूनी ताल्लुक कोई नहीं है, यानी ना कोई इसमें तार जा रही है इंटरनेट की, ना इसमें कोई ब्लूटूथ है, ना इसमें कोई वो है व्हाट यू कॉल वाईफाई है। तो ये इस लिहाज से बिल्कुल ये एक अकेली मशीन है, जिनका कि आपस में जो 3 मशीनें हैं, एक है जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास है और दूसरी 2 चीज़ें जो हैं वो वोटर जहाँ पे आएगा अपने सीक्रेट उसमें वो करेगा, उसको उसका सबूत भी मिलेगा कि जिसको वोट उसने दिया है बमाए निशान और बमाए नाम, वो देखेगा कि हाँ जी जिसको मैंने वोट दिया था उसी को वोट पड़ा है, फोल्ड करके वो इसमें डाल देगा। आखिर में जब ये ख़त्म हो जाएगी पोलिंग, उसके बाद जो है तो ये मशीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर सारे उनकी मौजूदगी में कहेगा कि जी अब पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है और अभी जो है इसके बाद पोलिंग कोई नहीं होगी, वो क्लोज का दबा देगा बटन, इस पर सील लगी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो प्रेस करेगा बटन और आपको पूरे जितने भी वो थे कैंडिडेट्स थे उनके आगे उनके वोट्स आ जाएंगे और एक टोटल जिसको कि आप कह सकते हैं कि एक किस्म का फॉर्म 45 जिस तरह होता है। फॉर्म 45 जो हाथों से लिखा जाता था उसमें गलतियां भी होती थी, उसमें कैलकुलेशन में भी दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे उसमें मिस्टेक्स भी आती थी, गलतियां होती थी। ये चीज़ जो है बिल्कुल एक कंप्यूटर से लिखी हुई, प्रिंटर से लिखी हुई, और जो बैलेट पेपर है वो आपने उधर उसकी अलहदा गिनती होगी और वो बैलेट पेपर थर्मल पेपर है। ये नहीं है कि पहले की तरह कोई छपवा के और बीच में अपने वोट डाल दें। हल्के के जो वोट होंगे वही, उससे एक वोट भी ज़्यादा हो नहीं सकता क्योंकि ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए इसमें हर चीज़ का, सिक्योरिटी का, रिलायबिलिटी का, फिर इसमें जो है आप अगर चाहते हैं कि जो इसके जो वोट्स हैं उसमें बिल्कुल ममासलत होगी, ठीक है जी। तो उसके बाद आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी और वो भी एक QR के तहत वो जो है तो किया जाएगा, जिसको कि पहले RTS कहते थे। तो ये एक बड़ी
मुस्तनद तरीके से और एक बड़ी स्पीड के साथ जो है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं फिर रिपीट करता हूं जी कि ये काम सब जो है ये कंडक्ट इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन अपना फैसला करेगा आया उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये मशीन पूरी करती है कि नहीं। हमने जो मशीन बनाई है उसमें पूरी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको हमने इसमें समोया है, लेकिन अल्टीमेटली फैसला उन्होंने करना है। सर, ये माजी में हमने देखा है कि आरटीएस पे बोझ पड़ने की वजह से काफ़ी मुश्किलात। अब आरटीएस जो है ना वो एज अ निज़ाम वो जो है वो ख़त्म हो गया, इसलिए क्योंकि एक ही वक्त में उस पर इतना ज़्यादा लोड डाला गया था, हर पूरे मुल्क से उसमें रिजल्ट आ रहे थे तो वो बैठ गया था। अभी जो हमने सिस्टम बनाया है वो उससे बिल्कुल वो होगा। सर, यही मैं कह रहा हूँ कि बोझ पड़ने की वजह से ये बैठ तो नहीं जाएगा। मिनिस्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो इसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का किरदार है, मतलब अगर वो कोई इस तरह का इसमें सिस्टम है कि एक बंदा जो है वो एक दफ़ा अपना वोट डालता है तो ये मशीन उसको रिजेक्ट करे। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर देखें जिस पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग एजेंट अक्सर जमात के होते हैं वहाँ पे तो कैंडिडेट की वहाँ पे तो कोई इस तरह की बात हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल। जिस जगह के ऊपर ठप्पा सिस्टम होता है या जहाँ पे धुंध का अवसर आ जाता है वहाँ पे अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस मशीन के ऊपर बैठ के बंदा साथ रख के सबके वोट पोल करते तो क्या ये मशीन उसको रोकेगी नहीं? नहीं जी, देखें ये मशीन जो है तो ये बुनियादी तौर पे वही सिस्टम है जिसमें कि आप पहले ठप्पा लगाते थे, जिसमें कि बैठ के आप 100 ठप्पे लगा सकते हैं। उसका जो मुतबादिल है वो यही है ना, आप ये कह रहे हैं कि जो पहले होता था कि कोई भी अपने जेब में डाल के वो ले आए और उस पर ठप्पे लगाए, ये उसका मुतबादिल है कि नंबर 1 ये है कि ये इसके एक वोट और दूसरे वोट के दरमियान एक वक्फा है। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स जो है तो उसको दबाता रहे, वो हो ही नहीं सकता। आप अभी ट्राई करके देख लेंगे, आप एक ही कैंडिडेट को आपको हम बुलाएंगे, आप वोट करें, उसी कैंडिडेट को फिर दोबारा वोट करें, वो नहीं होगा। ठीक है। और जो उसको जी सर, इसका जो एक तो नादरा के साथ सेंट्रल जो नहीं, इसका नादरा से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा यूएसबी है, यूएसबी चेंज में कोई आरटीएस वाला सिस्टम तो नहीं रहेगा? यूएसबी चेंज भी हो सकती है? सर, यूएसबी चेंज भी तो हो सकती है। यूएसबी में पहले डेटा भर के दूसरी वाली यूएसबी को साइड पे रख ली, ऐसा तो नहीं जी, इसमें यूएसबी का सिस्टम नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ कि देखें ये जो सिस्टम है इसको किसी भी तरीके से आप इसमें तब्दीली नहीं कर सकते हैं। ये एक कंप्यूटराइज्ड वो चीज़ होगी और ये भी नहीं पता होगा, इवन जो पोलिंग इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता होगा कि ये वाली मशीन किस हल्के में जाएगी। वो उसको रैंडम एक पूरे सिस्टम के तहत किया गया है जिसमें कि किसी को पता नहीं होगा कि ये मशीन जो है तो ये किधर जाएगी। तो इसलिए इसका बिल्कुल कोई वो नहीं है कि आप इसमें कोई चीज़ डाल दें। इसमें टेस्ट करें आप, ये हम दिखाएंगे इसको पूरे जो भी अपने पार्टीज़ के टेक्नोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं बेस्ट से बेस्ट अपने वो लाएँ और इसको तोड़ने की कोशिश करें, इसके पूरे उस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करें। साहब, इसमें ये जो सवाल है कि अब तक जितना भी इलेक्शन होता है उसमें एक बुनियादी रोल है शनाख्ती कार्ड का, नादरा का। आप इसको नादरा के से क्या ये थंब इम्प्रेशन से वोट वेरीफाई नहीं होगा? नहीं जी, देखिए जब थंब इम्प्रेशन होता है तो उसमें कई एक तो ये है कि आपको पता है कि कुछ वोटर्स के जो निशानात हैं वो मिट जाते हैं और मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि वो सिस्टम वही मैनुअल है कि जो वोटर लिस्ट होगी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दी होगी, जिसमें तस्वीर भी होती है, नाम भी होता है, नंबर भी होता है, वो उधर से वेरीफाई हो